my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 4 by Galaxy Publication. And here's a book, Science for Everyone. So children, let's start the chapter with Unit 1, which is Food. And here in this unit, we are going to start with chapter number 1, which is Plants, the Producers. So here, there is an exercise given which is let's begin. So some functions of plants are given below. यहाँ पे कुछ functions दिए गए हैं plants के. You have to match the functions to the plant parts. So plant के जो भी parts हैं उनसे आपको उन functions को match करना है. So यहाँ पे कुछ functions हैं और यहाँ पे parts दिए गए हैं. So here the first function is it holds the plant firmly to the ground. So यहाँ पे ये क्या करता है, ये प्लांट को ग्राउंड से पकड़ के रखता है. So which part is it? It is the root. Next, it prepares food for the plant. So plant के लिए food को prepare करता है कौन? This is the leaf. Next, it keeps the plant upright. प्लांट को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है. It is the stem. Fourth one is it turns into fruit. Fruit में convert हो जाता है and it is the flower. And the fifth one is it bears the seeds. इसमें आपको seed मिलेंगे. So it is the fruit part of the plant. So these are the answers, children. Now let's start the chapter. So children, you know that the plants are living things. आपको पता है कि ये जो plants हैं ये living things हैं. They need food and water as animals do. और इन्हें भी क्या चाहिए, खाना चाहिए, food चाहिए, water चाहिए जैसे animals को चाहिए होता है. But they are different from animals in one very important way. लेकिन ये क्या है, ये different है animals से एक तरीके से. और क्या है वो? They can make their own food. ये अपना खुद का खाना बना सकते हैं. While animals cannot. लेकिन जो animals हैं वो अपना खाना नहीं बना सकते. Animals depend on plants for their food. ये जो animals हैं ये किस पे depend करते हैं? ये plants पे depend करते हैं अपने खाने के लिए. Majority of plants have green leaves. ज़्यादातर जो plants होते हैं उनके जो leaves हैं वो green color के होते हैं. What makes leaves look green? क्या चीज़ें हैं जो leaves को green दिखने में help करती हैं? In fact, leaves have a wonderful pigment called chlorophyll inside them. So यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि जो leaves होते हैं उसमें एक बहुत ही अच्छा सा pigment होता है जिसे chlorophyll कहा जाता है. It is the chlorophyll that gives green color to the leaves. और ये क्लोरोफिल ही है जो क्या करता है, ग्रीन कलर देता है लीव्स को. लीव्स कम इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ शेप्स एंड साइजेस. और ये जो लीव्स हैं वो अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं. लार्ज एंड स्मॉल, थिक एंड थिन. तो ये जो लीव्स हैं कहीं पे ये लार्ज मीन्स बड़े होते हैं, कहीं पे स्मॉल मीन्स छोटे होते हैं, कहीं पे ये थिक मीन्स मोटे और कहीं पे थिन ये पतले भी होते हैं. So you can tell a lot about a plant where it grows just by looking at its leaves. तो आप किसी भी प्लांट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हो. किस बात से? सिर्फ उसके लीव्स को देख के. तो आप ये बता सकते हो कि वो प्लांट कहाँ पे ग्रो करता है. Now here let's move on to info bit. The world's largest leaves are those of रैफिया पाम. सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो वर्ल्ड के जो सबसे बड़े लीव्स हैं वो किसके हैं? रैफिया पाम के हैं. विच ग्रोज अप टू 20 मीटर्स लॉन्ग. और जिनकी जो लंबाई है वो 20 मीटर्स लंबी है. एंड हियर पिगमेंट मीन्स कलर्ड सब्सटेंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट्स ऑफ अ लीफ. लीफ के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे. सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. आपको पहले एक पत्ता लेना है, एक लीफ लेना है और उसे बहुत ही ध्यान से देखना है.
you will find that it has many parts. और आपको ये पता चलेगा कि ये जो leaves हैं इसके बहुत सारे parts हैं. So आप देख सकते हो आपके सामने एक leaf का structure दिया गया है और इसके बहुत सारे parts के बारे में यहाँ पे बताया गया है. So यहाँ पे first आप देख सकते हो this part, this tip part, ये जो कोना है this is called apex, the tip of the leaf, leaf का tip. Next comes this middle part which is the mid vein or mid rib and it is running along the center और ये बीच से गुजरता है. Next comes side veins. ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे जो ये lines दिख रही हैं इन्हें हम side veins कहते हैं. And a number of veins found all over the leaf. और ये जो है बहुत सारे वेन्स हैं जो पूरी लीव से गुजरते हैं, पूरे लीव्स में आपको दिखाई देंगे. नेक्स्ट कम्स दिस पार्ट, दिस इज द लीफ स्टॉक एंड दिस पार्ट अटैचेस अ लीफ टू द स्टेम और ब्रांच. तो ये पार्ट क्या करता है, लीफ को जो है स्टेम या फिर जो ब्रांच है उससे पकड़ के रखता है, उससे अटैच करके रखता है. नेक्स्ट कम्स लैमिना. So this part is the lamina or leaf blade. इसे leaf blade कहते हैं and it is the flat green part. और ये क्या है, flat green part है leaf का. So this is the leaf that we have learned about. Now let's move on to info bit. The leaves of the Amazon lily can be 2 meters across. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Amazon लिली के लीव्स के बारे में और इसके जो लीव्स हैं वो 2 मीटर जितने बड़े हो सकते हैं. अ स्मॉल बेबी कैन सिट ऑन इट विदाउट सिंकिंग. एक छोटा सा बच्चा उस पर आराम से बैठ सकता है बिना सिंकिंग मीन्स बिना डूबे. सो नाउ टर्न द लीफ ओवर एंड लुक क्लोजली यूजिंग अ मैग्नीफाइंग लेंस. अब आपको क्या करना है, ये जो लीफ जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा उसको जो है टर्न करना है और एक मैग्नीफाइंग लेंस से उसे देखना है. देयर आर मेनी टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, सिंगुलर इज स्टोमा. सो यहाँ पे आपको जो है लीफ के पीछे वाले हिस्से में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे जिन्हें जो है स्टोमेटा कहा जाता है और इसका सिंगुलर है स्टोमा मीन्स एक को हम स्टोमा कहेंगे. प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ अ लीफ. और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, लीफ के नीचे वाले पार्ट पे प्रेजेंट रहते हैं. दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ. और ये स्टोमेटा क्या करते हैं, प्लांट को जो है ब्रीथ करने में, सांस लेने में हेल्प करते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स. सो यू नो दैट ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल. आपको पता होगा कि जो हरे हरे जो पत्ते होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से तो वो ग्रीन होते हैं. इट इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग फूड. और खाना बनाने के लिए ये जो क्लोरोफिल है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. लीव्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. और ये जो लीव्स है वो क्या करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए. लीव्स अब्जॉर्ब सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल. और ये लीव्स क्या करते हैं, ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू. द सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी. और ये जो सनलाइट है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. दे गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द स्टेम दैट इज कैरिड बाय द रूट्स. और इन्हें जो है वाटर और मिनरल मिलता है कहाँ से, स्टेम से, जो है रूट से इन सब चीज़ों को कैरी करता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है. लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. और लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से लेते हैं थ्रू देयर स्टोमेटा, अपने स्टोमेटा से. द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन लीव्स और प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और ये जो प्रोसेस है किस चीज़ का, खाना बनाने का, प्लांट्स में, लीव्स में, इसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सो खाना बनाने के इस प्रोसीजर को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर. यहाँ पे फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर. सो हियर द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड.
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, और इस पूरे प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं. द गैस दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ इन, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है जिसकी ज़रूरत होती है हर एक लिविंग बीइंग को, ताकि वो ब्रीथ कर सके, ताकि वो सांस ले सके. सिंस लीव्स मेक फूड, दे आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट. क्योंकि ये जो लीव्स हैं अपना खाना खुद से बना सकते हैं, इन्हें जो है फूड फैक्ट्रीज या फिर किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है. लर्न द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सिंपल वे. हम जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो है काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं. और वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में जब ऐड किया गया वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, sugar, which is the food, and water and oxygen, these three things are released. And here you can see the process of photosynthesis. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब दोनों ही जाके लीव्स से मिलते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ से शुगर जो कि फूड है, वाटर और ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं. सो दिस यू कैन सी through the given diagram. Natural leaves make food in the form of sugar or starch, and it is like a sweet juice called sap. So leaves क्या करते हैं, खाना जो भी बनाते हैं वो शुगर और स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं, और ये जो शुगर और स्टार्च है वो एक स्वीट जूस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसमें, जिसे सैप कहा जाता है. The sap is carried to the stem through the veins. और ये जो सैप है उसे जो है स्टेम तक ले जाया जाता है वेन्स की मदद से. द स्टेम कैरीज इट टू डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. सो स्टेम क्या करता है, ये जो सैप है इसे जो है अलग अलग जो प्लांट के पार्ट्स हैं वहाँ तक ले जाता है, रूट तक ले जाता है, बड्स तक, फ्लावर्स तक और फ्रूट्स तक पहुँचाता है. प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. और प्लांट्स क्या कर सकते हैं, वो अपना खाना जो है सनलाइट की कमी में, उसके एब्सेंस में नहीं बना सकते. सो दे डू नॉट मेक फूड एट नाइट. इसलिए जो प्लांट्स हैं वो रात में खाना नहीं बनाते. इन फैक्ट दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. तो यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं, जब रात हो जाती है, जब वो खाना नहीं बना रहे होते हैं, तो वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं. That is why it is advised not to sleep under a tree at night. इसलिए कहा जाता है कि रात के समय किसी पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए. So now children, let's move on to exercise. Choose the correct option. And here the first question is, leaves are green because they have leaf blade, glucose or chlorophyll. So here children, the correct answer is chlorophyll. Now the second one is, the flat part of the leaf is called leaf stalk, midrib or leaf blade. So the correct answer is leaf blade. Now the third one is, they are also known as the food factory of the plant, seeds, fruits or leaves. So here the correct answer is leaves. Now let's move on to B part, which is, who am I? So here the first one is, it attach a leaf to the stem. I am a leaf stalk. Second one, I am the main vein. I run down the center of the leaf. I am midrib. इसे midrib भी कहते हैं. Now the third one is, I help the plant to breathe. I am stomata. So these are the answers, children. Now let's quickly move on to the next topic, which is, why do plants need food? Plants को खाना क्यों चाहिए? So plants are just as alive as we are. जैसे हम जिंदा है वैसे ही प्लांट्स भी जिंदा है, इसलिए जैसे हमें खाना चाहिए वैसे उन्हें भी चाहिए. They need food to grow and to produce young plants. इन्हें क्या चाहिए, खाना चाहिए ताकि ये ग्रो कर सके और अपने जैसे छोटे छोटे प्लांट्स को ये प्रोड्यूस कर सके. टू कंटिन्यू देयर जनरेशन, और जिसकी वजह से इनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ सकती है. दे ऑल्सो नीड फूड टू गेट एनर्जी. प्लांट्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए एनर्जी पाने के लिए.
टू डू मेनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, एंड टू रिपेयर देयर डैमेज्ड पार्ट्स, और अपने डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए। प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द लीव्स, प्लांट्स क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा खाना होता है उसे लीव्स में वो स्टोर करते हैं, रूट्स में स्टोर करते हैं, स्टेम्स में स्टोर करते हैं, फ्रूट्स में एंड सीड्स में। सो ये जो पार्ट्स हैं इन सब जगहों पे प्लांट्स अपना जो भी एक्स्ट्रा खाना होता है उसे वो स्टोर करते हैं। वी ईट देम एज आवर फूड, और ये जो पार्ट्स है जहाँ जहाँ पे ये खाना स्टोर करते हैं प्लांट्स, उन सारे पार्ट्स को हम अपना खाना बना के खाते हैं। हम जो है क्या खाते हैं, हम प्लांट के लीफ पार्ट को भी खाते हैं, हम प्लांट के रूट पार्ट को भी खाते हैं, हम स्टेम पार्ट को भी खाते हैं, हम फ्रूट पार्ट को और सीड पार्ट, इन सारे पार्ट्स को खाते हैं प्लांट के, जहाँ जहाँ वो खाना स्टोर करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर है मदर प्लांट की, विच इज़ कैरेट, जिसका हम रूट खाते हैं, बेबी प्लांट की जो कि है कैबेज, जिसके लीव्स खाते हैं, और यहाँ पे आपको जो है पोटैटो दिख रहा है जिसके हम स्टेम खाते हैं। Now here is an experiment given. Let's experiment. So children, starch is formed during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है, स्टार्च बनता है। सो ये एक्सपेरिमेंट ये बताएगा कि स्टार्च बनता है या नहीं। सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ ग्रीन लीफ एंड बॉईल इट इन वाटर। आपको एक ग्रीन लीफ लेना है और उसे पानी में बॉईल करना है। देन बॉईल इट इन स्पिरिट, अब उस पत्ते को हमें स्पिरिट में बॉईल करना है। दीज टू स्टेप्स विल रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ, और ये दोनों स्टेप्स क्या करेंगे, उस लीफ में से क्लोरोफिल को हटा देंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्लोरोफिल और ग्रीन कलर इज कॉल्ड ब्लीचिंग, और ये जो प्रोसेस है क्लोरोफिल को या फिर ग्रीन कलर को रिमूव करने का लीव्स में से, इसे हम ब्लीचिंग कहते हैं। द लीफ इज नाउ ब्लीच्ड, अब ये जो लीफ है इसका कोई कलर नहीं है, ये ब्लीच्ड है। नेक्स्ट स्टेप इज वॉश द लीफ विथ कोल्ड वाटर, अब उस लीफ को हमें ठंडे पानी से धोना है। थर्ड स्टेप इज ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन टू द लीफ, हमें जो है कुछ ड्रॉप्स जो है आयोडीन सोल्यूशन के इस लीफ पे डालना है। द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, और जैसे हम ऐसा करेंगे जो लीफ है उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। दिस शोज दैट स्टार्च इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये बताता है कि स्टार्च जो है प्रिपेयर होता है, फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम। नाउ देयर इज अ नोट ऑल्सो, स्टार्च टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हेन आयोडीन इज एडेड टू इट, स्टार्च जो है ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है जब उसमें आयोडीन को ऐड किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन लीफ है, उसे हमने अच्छे से जो है बॉईल किया है, सबसे पहले पानी में, फिर हमने उसे स्पिरिट में बॉईल किया, फिर वो देख सकते हो आप उसका जो कलर है वो वाइट कलर का हो गया, उसे हमने अच्छे से वॉश किया, फिर उस पर हमने जो है आयोडीन सोल्यूशन को डाला है। सो चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि आयोडीन सोल्यूशन को डालने के बाद जो लीफ का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, और जो कि ये बताता है कि लीफ में स्टार्च जो है कंटेंट मौजूद रहता है। नाउ हियर अनदर एक्सपेरिमेंट इज गिवन, लेट्स एक्सपेरिमेंट। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू कवर पार्ट ऑफ अ लीफ ऑन इट्स अपर एंड लोअर साइड विथ ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स, तो आपको क्या करना है, एक लीफ का जो है थोड़ा सा पार्ट जो है कवर करना है, किससे, ब्लैक पेपर स्ट्रिप से, ऊपर और नीचे दोनों ही पार्ट को आपको कवर करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेप, प्लग द लीफ आफ्टर 4 to 5 hours इन द सन, सो सन में 4-5 घंटे लीव्स के रहने के बाद आपको उसे जो है तोड़ लेना है, उस पत्ते को तोड़ लेना है। रिमूव द स्ट्रिप्स, अब वो जो स्ट्रिप आपने लगाई थी उसे रिमूव कर देना है। ब्लीच द लीफ एज इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, सो चिल्ड्रन जैसा हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में किया था लीफ को ब्लीच, सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन टू द लीफ, और हमें जो है अब जो है थोड़े से ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के यहाँ पे डालना है। व्हाट डू यू सी, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा जब हमने जो है आयोडीन सोल्यूशन को ऐड किया तो हमने देखा यू विल सी दैट द पार्ट कवर्ड विद द स्ट्रिप्स डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, तो हम ये देखेंगे कि जो जगह हमने स्ट्रिप से कवर की थी
वहाँ उस पार्ट का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ. while the remaining part turns blue black. लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है वो सारा ब्लू ब्लैक हो चुका है. This is because the covered part did not get sunlight. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो covered part था उसको sunlight नहीं मिला. So there is no starch in this part. इसलिए यहाँ पे इस पार्ट में बिल्कुल भी starch नहीं है. This shows that sunlight is necessary for photosynthesis. और ये बताता है कि सनलाइट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है photosynthesis के लिए. Now there is another experiment given here. Let's move on to the next experiment. Let's experiment. So here we are going to learn that chlorophyll is necessary for photosynthesis. अब इस एक्सपेरिमेंट से हम ये सीखेंगे कि क्लोरोफिल जो है photosynthesis के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. So here the first step is take a leaf from a coleus plant. तो हमें एक लीफ लेना है, नॉन ग्रीन एंड कोलियस लीफ लेनी है हमें. एंड द लीफ ऑफ दिस प्लांट इज पार्टली ग्रीन. और ये जो प्लांट है इसकी जो लीव्स है वो थोड़े बहुत पार्टली ग्रीन होते हैं. सेकेंड इज ब्लीच द लीफ एज इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट. हमें इस लीफ को भी ब्लीच करना है जैसे हमने पहले किया था. नेक्स्ट टेस्ट द लीफ विथ आयोडीन सोल्यूशन. और अब इस लीफ को भी हमें आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करना है. What do you see? आपको क्या दिखाई दिया यहाँ पे? You will see that only the green part of the leaf turns blue black. So अब हम क्या देखेंगे कि जो ग्रीन पार्ट था लीफ का सिर्फ वहाँ पे जो वहाँ का जो एरिया है वही जो है ब्लू ब्लैक हुआ है. This shows that chlorophyll is necessary for photosynthesis. और इससे हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल कितना इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. Now the next topic is food making in some unusual plants. तो अब हम पढ़ेंगे about some unusual plants जिसमें कैसे खाना बनाया जाता है. So there are some plants that do not have leaves and some are non-green. So children हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ ऐसे plants के बारे में जिनके leaves जो होते ही नहीं हैं और कुछ के अगर होते हैं तो वो non-green होते हैं, means different color के होते हैं. Have you ever thought how they make their food? क्या आपने कभी सोचा है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना बना लेते हैं लेकिन कई बार हमने देखा येलो लीव्स या रेड लीव्स या अलग अलग कलर के लीव देखे हैं. तो ये जो प्लांट्स हैं ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? सो सम प्लांट्स लाइक क्रोटॉन्स हैव रेड लीव्स. जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि कुछ प्लांट्स के रेड लीव्स होते हैं और उसमें से एक है क्रोटॉन्स. तो ये जो प्लांट्स हैं इनके रेड लीव्स होते हैं. दे टू हैव क्लोरोफिल. इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है बट द रेड कलर हाइड्स द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल. लेकिन इनका जो रेड कलर होता है इनके लीव्स में जो रेड कलर होता है वो क्या करता है ग्रीन कलर जो है क्लोरोफिल का उसे छुपा देता है. सो दीज प्लांट्स मेक फूड इन द रेड लीव्स बाय द यूजुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं खाना बनाते हैं जो रेड लीव्स है उसमें और जो नॉर्मल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का उसके थ्रू बनाते हैं. प्लांट्स लाइक कैक्टी डू नॉट हैव लीव्स. अब यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जैसे कैक्टी जिसे हम कैक्टस भी कहते हैं. इनमें जो है आपको लीव्स नहीं मिलेंगे. दे हैव थिक ग्रीन स्टेम्स. और इनके जो स्टेम है वो काफ़ी ज़्यादा थिक मीन्स मोटे और ग्रीन कलर के होते हैं. द स्टेम्स कंटेन क्लोरोफिल. ये जो स्टेम्स हैं इनमें आपको क्लोरोफिल मिलेगा. सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन देयर स्टेम्स. सो इसीलिए यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो इन प्लांट्स के स्टेम पार्ट में होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इन्फोबिट. ट्रीज lower the air temperature by evaporating water through their leaves. So trees क्या करते हैं जो एयर का जो टेम्परेचर होता है उसे वो कम कर देते हैं. कैसे? जो भी लीव्स हैं उसमें बहुत सारा वाटर होता है तो सन क्या करता है उस सारे जो वाटर है उन लीव्स में प्रिजर्व रहता है उसे इवेपोरेट करता है. तो इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है जो लीव्स हैं वो जो एयर का जो टेम्परेचर है जो गर्मी है उसे वो कम कर देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. Plants like mushrooms and molds do not have chlorophyll. So यहाँ पे अब हम बात करेंगे about the plants such as mushrooms and molds. So mushrooms जो होते हैं और जो molds होते हैं इनमें chlorophyll बिल्कुल भी नहीं होता है. So they cannot make their food.
इसलिए ये अपना खाना नहीं बना सकते। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पे एंड गेट देयर फूड फ्रॉम देम, और अपना खाना वहीं से ये जनरेट करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर है क्रोटॉन की, मशरूम की, कैक्टस की और मोल्ड्स की। नाउ give and take between plants and animals is the next topic we are going to learn. Plants and animals depend on one another for their survival. So children, plants और animals क्या करते हैं, एक दूसरे पे आश्रित है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। Animals including human beings need food and oxygen. जो animals होते हैं उसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए, खाना चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। दे गेट दीज फ्रॉम प्लांट्स, तो हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। सिमिलरली प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो अपना खाना बना सके। दे गेट इट फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, और उन्हें ये कहाँ से मिलता है, ये उन्हें मिलता है एनिमल्स से और ह्यूमन से। As they release carbon dioxide when they breathe out. तो जब हम ह्यूमंस जो है रेस्पिरेट करते हैं, जब हम जो है ब्रीथ आउट करते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ले लेते हैं। सो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द बैलेंस इन नेचर. So what would have happened if the population of animals had increased suddenly? क्या हुआ होता अगर जो population है animals का वो एकदम से बढ़ जाए, क्या होगा आप बताइए। Well, plants could not supply enough food and oxygen to all the animals. तो अगर एकदम से animals की तादाद बढ़ जाती है तो plants क्या करेंगे, वो enough amount में food और oxygen जो है supply नहीं कर पाएंगे इन animals को। Similarly, if there is a sudden increase in the number of plants, और इसी तरीके से अगर प्लांट्स का जो पॉपुलेशन है वो एकदम से बढ़ जाए तो क्या होगा, एनिमल्स कैन नॉट सप्लाई इनफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑल द प्लांट्स। तो इस केस में क्या होगा, जो एनिमल्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे इन प्लांट्स को। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन नेचर। इसलिए एक प्रॉपर बैलेंस की ज़रूरत है दोनों के बीच में, एनिमल्स और प्लांट जो है एक इक्वल प्रपोर्शन में होने चाहिए। दिस बैलेंस in between plants and animals in nature is known as ecosystem, और इसी बैलेंस को जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में है, इस बैलेंस को हम इकोसिस्टम कहते हैं। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय कैरिंग देयर सीड्स टू फार ऑफ प्लेसेस फॉर डिस्पर्सल। एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स की हेल्प करते हैं, जो भी सीड्स हैं उन्हें जो है बहुत दूर दूर तक कैरी करके, एंड इस प्रोसेस को हम डिस्पर्सल कहते हैं, सीड डिस्पर्सल कहते हैं। सो डिस्पर्सल इज द एक्शन ऑफ स्प्रेडिंग थिंग्स ओवर अ वाइड एरिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इन्फोबिट। एक्स्ट्रा फूड मेड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो जो भी एक्स्ट्रा खाना बनाया जाता है प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इस एक्स्ट्रा फूड को कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, ऑयल्स के रूप में और प्रोटीन के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज फूड चेन. So a food chain is a pathway that shows how energy and nutrients pass among the living things. So यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं about food chain. So ये क्या है, ये एक pathway है, ये एक रास्ता है जो क्या करता है, ये हमें दिखाता है कि कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो है एक दूसरे में पास ऑन करते हैं। A food chain always begins with plants called producers. ये जो फूड चेन है ये हमेशा प्लांट से स्टार्ट होता है जिन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, एंड एंड्स विथ एनिमल्स कॉल्ड कंज्यूमर्स, और ये एनिमल्स पे आके ख़त्म हो जाता है जिन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है। इन नेचर मेनी फूड चेन्स वर्क एट द सेम टाइम, और नेचर में बहुत सारे फूड चेन्स एक साथ काम करते हैं, सेम टाइम पे काम करते हैं।
अ फूड चेन ऑन लैंड। अब हम पढ़ेंगे अबाउट लैंड पे कैसे ये फूड चेन वर्क करता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लांट है जिससे जो है डियर ने खाया, जो कि एक एनिमल है। सो प्लांट हमारा प्रोड्यूसर है, उसे खाया एक उसके कंज्यूमर ने, और फिर इस डियर को खा लिया लायन ने। सो ये जो है दूसरा कंज्यूमर हो गया, और फिर जब ये लायन, जब इसकी डेथ हो गई, सो ये जो है मैन्योर बन गया जो प्लांट्स ने यूज़ कर लिया। सो दिस इज़ द फूड चेन ऑन लैंड। In this food chain, the deer eats plants to get energy. इस food chain में deer जो है plant को खा रहा है energy पाने के लिए. The deer itself becomes the food of the lion. और यहाँ पे जो deer है वो खुद ही जो है food बन जाता है lion का. So the lion gets energy from the deer. तो इस तरीके से जो lion है उसे energy किससे मिलती है? deer से. Thus energy and nutrients of the plants first pass to the deer and then to the lion. सो इस तरीके से क्या होता है, जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट से पहले डियर में जाती है और फिर डियर से वो वापस लायन में चली जाती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू हॉट्स. सो द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट फ्लोट ऑन द surface of water. Where do you think you will find stomata, on the upper or the lower surface? तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो लीव्स होते हैं लोटस प्लांट के वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं. तो आपको ये बताना है कि ऐसे प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो लीफ के ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है या फिर जो लोअर सरफेस है वहाँ पे मिलता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट food chain, which is food chain in water. So here you can see this is the food chain in water, and in this food chain water insects feed on plants to get energy. So इस food chain में क्या होता है, जो water insects हैं वो क्या करते हैं, plants पे depend रहते हैं energy पाने के लिए. The insects become the food of the frog. और यहाँ पे अब ये insect क्या बन जाते हैं, frog का food बन जाते हैं. The frog itself becomes the food of the fish. और ये frog आगे जाके fish का जो है food बन जाता है. Thus energy and nutrients from the plants first go to water insect. तो इस तरीके से जो energy है, जो भी nutrients हैं वो पहले plant से जाते हैं water insect में, then to the frog, और फिर इस insect से जाते हैं frog में, and finally to the fish, और फिर frog से fish में चला जाता है. If we disturb any life in a food chain, it will disturb the whole food chain. अगर हमने किसी भी चीज़ को इस फूड चेन में डिस्टर्ब किया तो क्या होगा, ये जो है पूरा जो फूड चेन है उसे डिस्टर्ब कर देगा. एंड फाइनली द होल एनवायरनमेंट, और इसके साथ साथ जो पूरा एनवायरनमेंट है उस पूरे एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्ब कर देगा. Now children, so this was the chapter. Let's move on to keywords, the important words. So here the first word is chlorophyll, which means green pigment in leaves. Stomata is small pores in leaf through which it breathes. Sap, a sweet juice. Producers, those who produce their food themselves. Consumers, those who consume or eat food. Now let's move on to the important points, which is the summing up. All green leaves contain chlorophyll. Green leaves use sunlight, water and carbon dioxide to make food. Leaves are known as food factories of plants. Plants and animals depend on one another for the survival. There must be a balance between plants and animals in nature. And the last point is our food chain shows how energy passes among the living things. So these are the important points, children. Now let's quickly move on to the book exercise. And here let's move on to exercises. So there are different exercises that are given here. Let's start from A exercise, which is write T for true and F for false. So children, here A exercise is write T for true and F for false. First one is stomata in a leaf help the plant to breathe. This is true. Second one is plants release oxygen during photosynthesis. True again. Third one is sunlight is necessary for photosynthesis. True. Fourth one is cacti make food
in their leaves. This one is false. They have stem. In their stem they make their food. Fifth one is a food chain always begins with plants. Yes, this is true again. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks with the correct words. So here words are given, you have to choose from them. So here the first one is a majority of plants are green plants. Second, the flat part of a leaf is called the leaf blade. Third question, leaves absorb sunlight directly when it falls on them. Fourth one, the process by which plants make their own food is called photosynthesis. Fifth one is the chain that exists in nature for obtaining food is called food chain. So these are the answers, children. Quickly, you have to write them down. Now children, let's move on to C part, which is name the following. So here the first one is kitchen of a plant is leaves. Second one, lines on a leaf is called veins. Third one, process of preparation of food by plants is called photosynthesis. Fourth one is liquid used for testing starch is iodine. And the fifth one is the flat, broad part of a leaf is lamina or leaf blade. Now children, let's move on to D part, which is darken the correct circle in given OMR sheet. So here you can see there is an OMR sheet. You have to darken here. I am going to tick here. So here the first question is majority of plants have dash leaves, brown, yellow or green. So here the correct answer is green. Now the second one is during photosynthesis plants give out this gas, carbon dioxide, oxygen, nitrogen. So the correct answer is oxygen. Third one is leaves make food in the form of sugar, water, gas. So children, here the correct answer is sugar. Fourth one is which of the following plants do not have leaves? Crotons, coleus or cacti. So the correct answer is cacti. Fifth one is which of the following is not needed in photosynthesis. यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी चीज़ photosynthesis में ज़रूरी नहीं है. So is it chlorophyll, oxygen or carbon dioxide? So here the correct answer is oxygen. Now children, let's move on to E part, which is match the following. So here you can see there are two columns in front of you, column 1 and column 2. You have to match all these two columns together. So here the first one is the process of preparing food is photosynthesis. Second, the flat surface of the leaf is leaf blade. Third one is a non-green plant, mold. Fourth one, gas required during photosynthesis is carbon dioxide. And the fifth one is prepared food is stored as starch. So these are the answers, children. Similarly, you have to do the rest of the questions yourself. So children, with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.